about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here. Hey guys, I'm a 10th grader and just like many of you have been facing many challenges with competency based questions lately. They can be really tricky, right? I realized that I needed something extra that could guide me better, so I ordered this from Oswal. This book is specifically designed for 2025 exam. This is from Oswal and the name of the book is Competency Based Questions, and it has chapter wise questions also. It is for class 10s and the subject which is here is science, social science and mathematics. And now let me tell you more about this book. It is 100% updated with the syllabus. It has core concepts and it has levels 1 and level 2. Even that, it also consists of MCQs and case-based questions. Now let me show you the content. This is the content, and now let me show you the chapter. It is the electricity chapter. First we'll get the core concept, which is a short note type of thing, and then there is level 1, which consists of objective type question answers, match the following, filling the blanks, and then you'll also get the concept to be applied, like the topic or the concept which is to be applied in the specific question. Moving further, you will get assertion reason based questions and also statement based questions. In level 2 you'll have case based questions, which consist of picture based questions and data based questions. You'll also get detailed answers for each and every question. So that was it about the book. If you want to purchase it, then go check the link which is in my description box. जैसे ये बुक आई थी ना, तो आई वॉज फ्लिपिंग द पेजेस एंड आई रियली लाइक द बुक. तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खोला एंड उसको सॉल्व करने बैठ गई. उससे पहले तो मैंने कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, फिर मैंने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया. जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे एंड वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे. एक क्वेश्चन जो मुझे नहीं आया था, मैंने उसका आंसर देखा था एंड पूरे डिटेल में आंसर लिखा हुआ है. उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है एंड किसी को भी ये बुक चाहिए तो परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत पतली बुक है एंड इसमें सारी चीज़ें हैं. इवन हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट्स के भी हैं एंड तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही थी सारे न्यूमेरिकल्स. इसमें न्यूमेरिकल्स भी थे और केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा था एक्चुअली. सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि अब तो सितंबर ख़त्म हो गया, अक्टूबर आ गया, अब हमारे पास टाइम नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना है, सैम्पल पेपर्स करने हैं, PYQs करने हैं. बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है. इसमें हर चैप्टर के मान लो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन तो है ही नहीं, और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रख देगा. सो दिस बुक इज़ अ मस्ट. इट कैन बी अ गेम changer and help you with your preparation. So do check the link which is in my description box. Also my half yearly just got over and didn't wanted to really start a new chapter. That's why I was just solving my previous chapter which I've already done. And ये नई बुक आई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सॉल्व कर लिया जाता है. एंड फिर मैंने कुछ नई चैप्टर स्टार्ट तो नहीं किया था बिकॉज आई रियली डिडंट वांटेड टू स्टडी. तो ये वाला मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे. फिर तो यार कल ना मैं स्कूल से आई थी एंड आई जस्ट स्लेप्ट. आई डिड नथिंग एट ऑल. मैंने ना इलेक्ट्रिसिटी का मिड टर्म मैराथन देख लिया था रक्षक सर का, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने का. इसलिए मैं ये चीज़ आज सॉल्व कर रही थी एंड सब कुछ सॉल्व करने के बाद ना मैं यहाँ पर अपने रेड पेन से चेक भी कर रही थी. और जो क्वेश्चन मुझे असोसिएशन रीज़न का नहीं आया था, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, तब मुझे वो क्लियर हो गया था. और मैं सारे क्वेश्चन चेक कर रही थी बस रैंडमली यहाँ पर. एंड अगर आपके भी हाफ ईयरलीज ख़त्म हो गए तो डू टेल मी आप क्या कर रहे हो अभी. So after completing the competency based question, I started a new chapter, the necklace. And ये necklace chapter मैंने इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने बताया था ये चैप्टर बहुत अच्छा है. तो मैंने सोचा चलो मूड रिफ्रेशमेंट करने के लिए चैप्टर अच्छा होगा. दैट वॉज अ साउंड ऑफ अ थंडरस्टॉर्म. यहाँ पर एक्चुअली बारिश स्टार्ट हो गई है. एनीवे, तो मैं इंग्लिश कर रही थी एंड ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद आया. मतलब इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग. तो सेकेंड जो फेवरेट चैप्टर है मेरा क्वेश्चन ऑफ थ्रस्ट के बाद, तो ये वाला चैप्टर है. एंड अगर किसी को भी मूड फ्रेश करने के लिए चैप्टर पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ना, ये बहुत अच्छा चैप्टर है. तो मैंने एजुकेशनल भैया से उनका एक वीडियो देखा था एंड इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया. इंग्लिश करने के बाद जो मैंने कल मिड टर्म मैराथन देखा था ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे सर ने, तो उनको फटाफट कॉपी डाउन कर लिया था. कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने सोचा जो रिविजन नोट्स में होने चाहिए तो मैंने उनको ऐड कर लिया. आई डिडंट वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे. बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स एंड थोड़े बहुत जो भी काम थे उनको कंप्लीट कर लिया. कुछ स्कूल वर्क भी था जो मेरा पहले का रह गया था, तो उसको कंप्लीट किया मैंने. एंड मेरा स्कूल तो अभी मंडे से है बेसिकली, तो अभी मैं कुछ स्टार्ट नहीं करने वाली. मैं सैटरडे या संडे को प्रोली कुछ नया स्टार्ट करूँगी. I'll also be sharing my October planner, so watch the video till the end if you want to actually know like what I have planned for October. Then I started listening to Mihika's playlist because ये मेरे को सुनना था एग्ज़ाम के टाइम पे. शी हैव शेयर दैट. एंड उसके बाद मैं ना जर्नल करने बैठ गई थी, तो मैंने Pinterest पे कुछ जर्नल सेव करके रखे थे, लाइक जर्नल कवर आइडियाज़. तो मैं अक्टूबर का जर्नल कवर बना रही थी यहाँ पर. आई डू मेक जर्नल कवर्स ऑफ ईच एंड एवरी मंथ. तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने अभी अक्टूबर का बना लिया, क्योंकि उसके बाद क्या पता हेक्टिक स्कूल शेड्यूल हो जाएगा तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँ. सो और वैसे भी अभी सिलेबस कंप्लीट करना है. वी हैव
हैव लाइक बोर्ड्स इन लाइक 4 to 3 months एंड तो या प्री बोर्ड भी है, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, तो सिलेबस तुमको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो अभी मैं अपना जो भी है एक दिन के लिए जितना भी रिलैक्स कर सकती हूँ वो रिलैक्स कर रही थी, गाने सुने, जर्नल बनाया एंड दैट्स व्हाट। और अभी अक्टूबर प्लानर भी बनाऊँगी। सो दिस इज़ वॉट आई वॉज लिसनिंग टू वाइल मेकिंग माई जर्नल अब कंप्लीट हो गया था। मैंने सिर्फ आज जर्नल कवर बनाया, बाकी सारी चीज़ें जो हैबिट ट्रैकर, मोड ट्रैकर वो बाद में बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। सो आई वॉज डन एंड दिस इज़ हाउ माई जर्नल लुक्स लाइक। मैंने ये अमेज़ोन पे ऑर्डर किया था एक्चुअली, लाइक ईयर स्टार्ट होने से पहले। तो अभी मैं अक्टूबर प्लानर बनाने चली गई। तो यहाँ पे मैंने वीक 2, वीक 3 और सारे डेट्स लिख लिए थे, जैसे जैसे डेट्स हैं। अब मैं उस सब में अलॉट करूँगी। हर वीक में बेसिकली हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कंप्लीट करना रह गया मेरा। बेसिकली मेरा तो मैथ्स का कंप्लीट हो गया है। तो देखो, देख सकते हो कि मैथ्स का क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है मैं पूरे टाइम क्वेश्चन बैंक करूँगी। तो वीक 1 में केमिस्ट्री का चैप्टर 4 करना है मुझे, उसको रिवाइज़ करना है। फिर हिस्ट्री का चैप्टर 5 करना है, प्रिंट कल्चर एंड इंग्लिश के कोई 2 चैप्टर पढ़ूँगी और हिंदी का एक पोएम रह गया, उसको पढ़ना है। देन मैथ्स में मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक्स एंड MCQs करूँगी, प्रैक्टिस वाइज से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि MCQs में ना 1-2 नंबर मेरे जा रहे हैं इसलिए। अब वीक 2 के बाद मैं कहने वाली हूँ बायो का चैप्टर 4 जो हेरिडिटी वाला है, सिविक्स का चैप्टर 4 करूँगी एंड इंग्लिश का चैप्टर 10 एंड हिंदी में ना एक स्टोरी है तो वो करना है। फिर बेसिकली ये हिंदी में स्टोरी कंप्लीट करना है। फिर वीक 3 में बायो का चैप्टर 5 करना है, आर एनवायरनमेंट एंड सिविक्स का चैप्टर 5 करना है एंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 भी मैं इन दोनों वीक के बीच में करूँगी, क्योंकि सिविक्स का चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 है वो बहुत थोड़ा है। फिर इंग्लिश का चैप्टर एक करना है वैसे एंड हिंदी का भी एक पोएम एंड ये सब चीज़ करनी है। फिर वीक 4 में मुझे सारे फिजिक्स के चैप्टर्स रिवाइज़ करूँगी, न्यूमेरिकल्स एंड सारे चैप्टर्स रिवाइज़ करूँगी, बेसिकली केमिस्ट्री, बायो सब कुछ। फिर ज्योग्राफी का चैप्टर 4 करना है, फिर मैप प्रैक्टिस करना है ज्योग्राफी चैप्टर 7 का। फिर भोली का इंग्लिश वाला चैप्टर करूँगी एंड हिंदी के और इंग्लिश चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी। सो दैट वाज इट फॉर द व्लॉग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।